Namaste. Welcome to day 9 of edition 4. And tomorrow is the last day of edition 4. And after that, we are launching a quiz. I hope you're watching all the videos because our quiz is based on the videos of edition 4. But before we move to the quiz, we have day 9 and day 10. So can you tell what's going to be the title of our story today? You need some hint, I know. I will do one song and after that I will ask this question again. So listen to the song carefully and tell me what's going to be the title of our story. Come, let's sing the song. हवा चली भाई हवा चली, किसको लेकर हवा चली, पतंग को लेकर हवा चली, हवा चली भाई हवा चली, हवा चली भाई हवा चली, किसको लेकर हवा चली, पतंग को लेकर हवा चली, हवा चली भाई हवा चली, किसको लेकर हवा चली, धूल को लेकर हवा चली, हवा चली भाई हवा चली, पतंग को लेकर हवा चली, पतंग को लेकर हवा चली, धूल को लेकर हवा चली, हवा चली भाई हवा चली। तो हवा किस किस को लेकर चली थी? पतंग को देखा है आपने? आसमान में पतंग को उड़ते हुए जब बहुत तेज हवा चलती है तो पतंग अपने आप ही उड़ने लग जाती है। और आपने जब तेज हवा चलती है तब पत्तों को भी उड़ते हुए देखा है? कुछ पत्ते इतनी तेज हवा के चलने से टूट जाते हैं और हवा के साथ उड़ते चले जाते हैं। और हम घरों में और अपने आसपास धूल को तो देखते ही होंगे, हवा के साथ कैसे धूल उड़ती है। अच्छा बताओ, हवा और किन किन चीजों को उड़ा के लेके चली जाती है? सोचो सोचो, चिड़ियाएं उड़ती हुई देखी होंगी और बहुत सारी चीजें, जब तूफान चलता है तब कई बार थैलियां भी उड़ जाती हैं और बहुत सारे कपड़े जो सूखे हुए होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। तो सोचो और क्या क्या उड़ता है? हवा चली भाई हवा चली, धूल को लेकर हवा चली। आज हमारी कहानी किस पर होगी? सोचो। अच्छा, आज मैं आपको बता देती हूं हमारी कहानी किस पर है। आओ अब हम कहानी पढ़ते हैं और आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आज की कहानी किस चीज पर है। आज की हमारी कहानी का नाम क्या है? धूलीज स्टोरी एयर। हवा चली भाई हवा चली, धुएं को लेकर हवा चली। आओ देखते हैं इस कहानी में क्या होगा। इस कहानी को लिखा है अनुष्का कालरो ने, राजसी राय, संकलीना नाथ और शुभांगी गोयल ने। इस पुस्तक को छापा है तुलिका पब्लिशर्स ने। आओ अब हम पढ़ते हैं धूलीज स्टोरी एयर। आपको ये चित्र याद आ रहा है? ऐसा चित्र हमारी कौन सी कहानी में था? एक छोटी बूंद। हाँ, बूंदी की कहानी में। धूली is a tiny speck of dust who flits and floats in the air. धूली कहाँ है? हाँ, ये रही। Around her are many of her dust friends. They dance and play together. You can sometimes see them in the sunlight. Have you seen dust dancing and playing in the sunlight? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। Dhuli knows many things about the air around her.
She knows that air wraps the earth, protecting everything on it. Air lets in only as much light and heat from the sun as we need. So air really protects us. She knows that air is mainly a mixture of gases, some of which are very important for people, animals, and plants. What are those gases? Oxygen and carbon dioxide. Dhuli knows there are other things too in the air around her, like water vapor, which rises into the sky to become puffs of clouds. The wind carries dhuli up to these clouds. Look at the wind carrying dhuli up to the clouds. And what will happen when dhuli will reach the cloud? The wind is moving air. It is sometimes gentle, sometimes strong. It carries dhuli to many places. Sometimes it takes dhuli high up in the sky, past bigger clouds, birds, and even near aeroplanes. Oh, so look here, dhuli has reached near aeroplane. Dhuli loves the different colors of the sky. Sometimes she sees a beautiful band of 7 colors, a rainbow. Look here. During the day, when the sun is bright, the sky is a deep blue. Sometimes it is much lighter, almost white. Early in the morning, when the sun rises, the sky is often a pretty pink. As the sun's rays travel through the air, they bump into gases and into dhuli and her friends who are floating around. All this bumping and bouncing of light can make the sky pink. Oh, so that's how the sky gets the color pink. In the evening, when the sun is setting, the same thing happens. But now there is more smoke, dirt and dust in the air, and so the sky becomes yellow, orange or red. Dhuli and her friends may be tiny, but they can even help to change the color of the sky. So dhuli is tiny but can do wonders. Did you see how the color of the sky changed? Look here. Look at the color of the sky here. And look at the color of the sky here. And why the color of the sky changed? Because of dhuli. So dhuli is tiny but can do lot of things. So this was the story published by Tulika, Dhuli's story Air. तो धूली हिमालय से जब अलग अलग शहरों में जाती होगी तब धूली को कैसा लगता होगा? सोचो जरा, धूली हिमालय से दिल्ली आई, फिर जयपुर आई, फिर बॉम्बे गई, बैंगलोर गई, चेन्नई गई. धूली को कैसा लगता होगा जब वो अलग अलग सिटीज में जाती होगी? सोचो. अच्छा ये बताओ, धूली और उसके फ्रेंड्स को पता है कि हमारे आसपास जो एयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? क्या आपको पता है? आप भी ढूंढना, और ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं. उन तरीकों को खोजना और ये ढूंढना कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं. और हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि कई बार विंड कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और कई बार बहुत जेंटल होती है. तो आओ इसी पर अब हम एक एक्टिविटी करते हैं.
आज की एक्टिविटी में हम विंड मिल बनाने जा रहे हैं और वो बनाने के लिए हमको चाहिए एक पेपर, पेंसिल, इस तरीके की एक पिन, स्केल। मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा एक ये इस तरीके का रोल लिया है। आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर से भी रोल बना सकते हैं, स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, कोई मोटा स्टिक भी ले सकते हैं। अभी आप जब एक्टिविटी पूरी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कितनी अलग अलग तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आपको भी इसी तरीके का एक हार्ड रोल चाहिए और सिजर्स चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना तो अब आपको आ ही गया होगा इतनी एक्टिविटी के बाद। जब आप इस तरीके से एक स्क्वायर पेपर ले लेंगे, उसके बाद हमको इस एंड से इस एंड तक एक लाइन ड्रॉ करना है स्केल से। तो हम वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से दूसरे एंड पे भी हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से। जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तब यहां से लेके यहां तक का आप लेंथ देखें कि कितना आ रहा है। तो ये लेंथ 14.5 आ रहा है। इसका अगर मैं हाफ करती हूं तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, पर मुझे उससे थोड़ा सा कम लेना है तो मैंने यहाँ 6 पर मार्किंग किया है। अब हम इस शीट को रोटेट करेंगे और दूसरी साइड मार्क करेंगे। दूसरी साइड मार्क करने के लिए भी लगभग ये 14.5 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 6 पर मार्क कर दिया। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी वापस से मेजर करना है। ये भी 14.5 आ रहा है, 6 पे मैंने मार्क किया और इस साइड पे भी रोटेट करके मैंने 6 पर मार्क कर दिया है। अब देखते हैं कि ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक हमको सिजर्स से कट करना है। इसको उठाना है और सिजर्स से यहाँ तक कट करना है। जहाँ तक मार्किंग की है कट सिर्फ वहीं तक करेंगे। ये जो 4 ट्राइंगल्स हैं इनको आप कलर करें और फिर कट करें, क्योंकि कट करने के बाद कलरिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी कलरिंग करके रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको कलर्स करने होंगे। आप कट करने से पहले ही यहाँ पर कलर कर लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये पिन लेनी है और पिन लेने के बाद यहाँ पर इस पिन को इसमें होल्ड करना है। इसमें आप बड़ों की भी हेल्प ले सकते हो। फिर इस पिन को आपने यहाँ पे डाला, इसको उठा के फिर यहाँ से आप इसको उठाएंगे और वापस से पिन इससे पास करेंगे। यहाँ से आप इसको उठाएंगे और दोबारा से पिन इससे पास करेंगे। ये करने के लिए आप बड़ों की हेल्प भी ले सकते हो। और फिर इधर से इसको उठाएंगे और पिन को इससे भी इसमें भी शीट में होल्ड करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो आपको यहाँ पे सेंटर दिख रहा होगा। इस सेंटर में आप होल्ड कर दें, इसको पूरा ऐसे टाइटली होल्ड करके रखें और यहाँ पर इसमें स्टिक में, जो भी आपके पास स्टिक है उस स्टिक में इसको डाल दें। तो ये हमने विंडमिल बनाई है। अब हम देखते हैं कि ये विंडमिल घूमती कैसे है। सो ये थी कहानी धूली स्टोरी एयर। और आपको ये छोटी सी एक्टिविटी भी अच्छी लगी हो और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर ढूंढना जरूर। मैं कल फिर आऊंगी और कल एडिशन 4 की लास्ट स्टोरी होगी। थैंक यू सो मच। हम जल्द ही मिलते हैं।